अभी तो अपन 3 जने हैं, आ जाओ लोग। मैंने देखूंगा, आपको बोलेंगे नहीं सुनेगा। कैमरा बंद है या फिर म्यूट है ना? Vikram sir, am I audible? Yeah, Shruti, you're audible. Can we start? Hello. Hello, sir. Shruti ma'am, you are audible. Okay, fine. So good evening, everyone. Is there a lag? I think there is some audio lag something. अब तक जो दिल में छुपा कर रखा था, सुनने वाले ने बरसों पुराने वो सारे राज, पागले परिवार के ही नए सदस्य की कहानी का कल होने वाला है आकाश। देखने जरूर बाकी दुनिया नई थी, नए नींद नहीं आया बेटा, आखिर रात में Shall we start? Sanket bhai, I think Yes, we can.
Yeah, please. Yes, sir. Sir, Yeah. I'll just check. I can't see Haresh, sir. So whenever Shruti, you're comfortable, we can start. And Sanket is also there. I can see him. Yes, sir. Yes, sir. I'm just confirming with Haresh, sir. Yeah. Already 22 people have joined. So Just a minute, sir. Yeah. Just a minute, sir. Hello, sir. Vikram, sir, we can start. Yeah. Please introduce Sanket bhai, no? Yeah, sir. So, good evening, all. Thank you for joining for our third session today. I hope you have enjoyed all the two previous sessions, and today we will be covering on the implementation of what we have learned with some live the real stock exchange examples and how those parameters will be implemented in those stocks. So today we have Sanket with us. Sanket has a mechanical engineering degree from SVNIT and MBA degree in finance. Sanket is born and brought up in Surat. So we have a Surti with us today. And Sanket has market experience of over 7 years, and currently he's working with India's leading brokerage firm as an assistant VP investment services. So over to you, Sanket, and Haresh sir will also join. So in case of any doubts, everyone can they can write in the chat box, and then we can address towards the end. Over Thank to you, you, Shruti ma'am. Sanket. Thank you, Shruti ma'am, for the kind introduction. Hello, fellow Surtis. I hope બહુ મજા આવે છે. For the first two sessions, you really enjoyed and you really learned something which is valuable for your investment history. અને हमने ये इच्छा, हमको एक्चुअली वही इच्छा है कि आप लोग ये सीख के आप आपका फाइनेंशियल प्लानिंग या तो फिर आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आप जल्दी अचीव कर सकते हो. Just wanted to inform कि आप लोग चैट में बोल सकते हो if you are not comfortable in Hindi or Gujarati or any such thing. I will mix up language between Hindi, English and Gujarati. तो आपको अगर uncomfortable लग रहा है और you want me to do anything, any changes, please write on the chat so that it's quick enough. So I'll just start with the presentation once. Dr. Vikram, please inform me once the screen is visible. Yeah, it's visible. Please start, Sanket. Yes. So initially we have to understand some definitions of fundamental analysis and all. We have understand some ratios. The idea of the today's lecture is that हम लोग कैसे ये financial statements जो रहते हैं वो बहुत complicated रहते हैं, उसको हम लोग कैसे थोड़ा सिंप्लीफाई करके हम लोग बेसिक समझ सकते हैं, जिससे फायदा ये होगा कि आप लोग एनालिसिस में एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल सकता है. So मैं क्या करने वाला हूँ कि I will use combination of presentation as well as screener. Screener.in बहुत famous हो ही गया और बहुत easy tool है use करने के लिए. I will use combination of both and we'll see how we can go ahead. So
अपना एजेंडा यही है, आज की तारीख का कंटेंट जो मैंने आपको बताया कि सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और सारी चीजों के साथ मैं आपको मार्केट के एग्जांपल्स भी दूंगा सो दैट यू कैन रिलेट। एज श्रुति मैम टोल्ड अर्लियर कि कोई भी डाउट आप चैट में डाल दो, विल डेफिनेटली एड्रेस दैट इफ रिक्वायर्ड इन बिटवीन और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन। सबसे पहले एक्चुअली आप इन्वेस्ट करते हो स्टॉक मार्केट में, तो उसके मोटा मोटी 3 डिफरेंट क्राइटेरिया हो सकता है, स्टॉक को देखने का नजरिया हो सकता है। सो फर्स्ट इज कैपिटल एप्रिसिएशन, कि आप लॉन्ग टर्म में ग्रोथ चाहिए, आपको पोर्टफोलियो पैसा बनाने के लिए, दैट इज वन आइडिया। सेकेंड कि बहुत लोग जो इन मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं वो ऐसा देखते हैं कि अपना पैसा उसमें भले स्लो बने बट अपने को रेगुलर कैश फ्लो चाहिए उसमें से इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड। कुछ बहुत सारी कंपनीज होती है जो डिविडेंड ज्यादा देती है, जैसे रिसेंटली आप देखोगे वेदांता ने बहुत डिविडेंड दिया है लास्ट 3 साल में, कोविड जब से शुरू हुआ तब से, या आईटीसी ने अपना पॉलिसी थोड़ा इंप्रूव करके वो लोग अब डिविडेंड ज्यादा दे रहे हैं। सो एक दूसरा तरीका ये हो सकता है। तीसरा, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम लोग साइकिल समझते हैं कि कौन से सेक्टर का कैसा साइकिल चल रहा है, तो हम लोग उस हिसाब से इन्वेस्ट करेंगे। जैसे स्टार्ट ऑफ कोविड में, आई विल यूज कोविड एग्जांपल अलॉट क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स उधर से भी शुरू हुए, एंड सेकेंडली वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज था इन्वेस्टमेंट हिस्ट्री का इसके लिए। तो साइक्लिकल में आप देखोगे मार्च एंड में जैसा कोविड हिट अस हार्डली वेरी हार्ड ऑन आवर लाइव्स, साइक्लिकल थीम में आप देखोगे तो सेक्टर्स लाइक फार्मा, आईटी, दे डिड रियली वेल। उसके बाद स्पेशली केमिकल ने पार्ट लिया। तो ये साइकिल्स अगर ये सेक्टर्स कोई समझ सकता है, उस हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहता है वो सेक्टर रोटेशन वाइज, तो ऐसे भी कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये कि कुछ भी चीज करना है तो आपको स्टार्ट करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। सो टू एक्सप्लेन इन अ इजी मैनर, आप देखोगे सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत बड़ा होता है बट उसमें 5 बेसिक स्टेप्स आप फॉलो करोगे तो शायद अपने बहुत इजी रहेगा। स्टेप्स क्या है? सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन किस हिसाब से, अदर इनकम है नहीं है, नेट प्रॉफिट क्या है, और नेट प्रॉफिट से ईपीएस आता है, तो ईपीएस है कि नहीं, करेक्ट। So just let me just open up something, just a second. So you must be able to see my screen. I opened Nestle India's profit and loss statement on screen. Yeah, we are seeing it. Yes. So if you can see, I'll just show you some important points on this screener. जैसे मैंने बोला सबसे पहले सेल्स देखना है। So सेल्स क्यों देखना है? कोई भी कंपनी है या कोई भी बिजनेस रन कर रहा है, अगर सेल्स सही डायरेक्शन में तो बाकी सब अगर गलत डायरेक्शन में तो भी वो सही हो सकता है आगे जाके। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज सेल्स मतलब आपका क्लाइंट, मतलब वॉट एवर यू आर डूइंग, आर यू रिलेवेंट टू द योर कस्टमर्स नीड और नॉट। अगर आपका सेल्स बढ़ रहा है मतलब यू आर रिलेवेंट टू द कस्टमर्स नीड, दैट इज द मोस्ट फंडामेंटल थिंग विच वी चेक। सो आप देखोगे, लेट्स से आई एम ओपनिंग नेस्ले, इफ यू सी नेस्ले's सेल्स, इट हैज कंसिस्टेंटली गिवन गुड ग्रोथ। उसके साथ साथ आप देखोगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स भी कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली उन लोग ने ऑपरेटिंग मार्जिन भी कंसिस्टेंटली वो लोग ने हायर रखा है। इफ यू सी ओवर हियर 2015 में उनका ऑपरेटिंग मार्जिन काफी कम है। उसका रीजन था, इफ यू रिमेम्बर, मैगी का इनको इश्यू हुआ था, लेड वाला एक इश्यू हुआ था। उस टाइम पर उन लोग ने मैगी पूरा विड्रॉ किया था सारे शेल्फ पर से, और फिर उन लोग ने रीलॉन्च किया था। तो दैट इज द ओनली ईयर जहां पर उनका ऑपरेटिंग मार्जिन कम हुआ है, वरना दे आर कंसिस्टेंटली ओवर 20%। तो ये कंपनी से हम लोग को ये समझ में आता है कि इफ द कंपनी इज एबल टू डिलीवर कंसिस्टेंट ऑपरेटिंग मार्जिन, देन फंडामेंटली सेल्स वाइज दे माइट बी डूइंग समथिंग करेक्ट, और उनके कॉस्ट साइड भी दे आर एबल टू मैनेज द रॉ मटेरियल कॉस्ट। सो दिस इज पार्ट 1। आई कैन शो यू अदर एग्जांपल, लेट्स से ऑफ सन फार्मा। सन फार्मा में आप देखोगे, सो सन फार्मा वाज डार्लिंग ऑफ द इंडस्ट्री बिफोर ट्रम्प आए, उसके पहले 2016 तक। तो उसके बाद बोलते हैं कि यूएस एफडी के प्रॉब्लम बढ़ गए, बट ऑफ कोर्स यूएस एफडी के प्रॉब्लम बढ़े, बट उसके बाद आप उसके पहले का ऑपरेटिंग मार्जिन देखोगे तो इट वाज more than 35-34%. But if you look after that period, the operating profit have also dropped drastically, और दो phases अपने को clear differentiation दिख रहा है कि ऑपरेटिंग मार्जिन ज्यादा था तब शेयर प्राइस परफॉर्मेंस अच्छा था, ऑपरेटिंग मार्जिन गिरना शुरू हुआ तो शेयर प्राइस परफॉर्मेंस भी गिरना शुरू हुआ।
सो आई एम जस्ट शोइंग यू आइसोलेटेड एग्जांपल्स, मतलब ये हमेशा हर बार होगा ऐसा जरूरी नहीं है, बट आई एम जस्ट शोइंग यू सम स्पेसिफिक एग्जांपल्स। सो ऑपरेटिंग मार्जिन इसलिए बहुत जरूरी है कि आपका कंपनी में जो भी रेवेन्यू आ रहा है, रेवेन्यू में से आप बराबर पैसा बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे हो। उसके साथ साथ आपको देखना है अदर इनकम की वजह से तो प्रॉफिट स्केल अप नहीं हुआ है या तो फिर प्रॉफिट रिड्यूस नहीं हुआ है। सो ये लोग का अदर इनकम में इधर फैसिलिटी मिलता है कि अदर इनकम में उन्हें एक्सेप्शनल आइटम लिखा है। एक्सेप्शनल आइटम कुछ भी टाइप का हो सकता है कि उनने इसमें माइनस है, मतलब उनको अदर इनकम आने से ज्यादा उनको गया है, मतलब शायद उनने कुछ एक्विजिशन वो सब भी किया हो सकता है खुद की कंपनी में या तो फिर बाहर, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ और सिर्फ बाहर से किया है तो ही हो सकता है, अगर खुद का दूसरा कोई डिवीजन है उधर से भी करते तो भी ये सब एंट्री उन लोग को दिखाना पड़ता है। तो ये बहुत जरूरी है कि वन टाइम, बहुत बार क्या होता है कि किसी कंपनी का आप अपने व्हाट्सएप पर आज बहुत इजीली मैसेज आ जाता है कि ये कंपनी का रिजल्ट आया और रिजल्ट में रेवेन्यू ग्रोथ फॉर एग्जांपल 15% आया बट प्रॉफिट उनका 150% आया। तो बहुत बार अपने को लगता है कि कंपनी कुछ अच्छा कर रही है, बट दिस कैन बी रिजल्ट ऑफ अदर इनकम। तो कभी आपको ये बहुत इन्फ्लेटेड टॉप लाइन के सामने बहुत इन्फ्लेटेड बॉटम लाइन या प्रॉफिट दिखे तो आप प्लीज अदर इनकम डेफिनेटली चेक करिए। अदर इनकम, या बहुत बार अदर इनकम क्यों आता है, मोस्ट कॉमन एग्जांपल इज कि उनका पास कोई एसेट था वो एसेट बेच दिया, या तो फिर कोई ब्रांड था वो ब्रांड बेच दिया। तो उस हिसाब से उनका अदर इनकम आता है। कोई जमीन बेच दिया, किसी ने मशीनरी बेच दिया, उस हिसाब से। नाउ आफ्टर लुकिंग एट अदर इनकम व्हाट वी हैव टू लुक इज कि उनका नेट प्रॉफिट कहाँ आ रहा है, नहीं आ रहा है, कितना आ रहा है। सो वी लुक एट पैट, सो प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक बार देखना जरूरी है। अच्छी कंपनी होगी तो टैक्स ऑटोमेटिक वो लोग एफिशिएंटली भर रहे होंगे। जैसे नेस्ले एक अच्छी कंपनी है, उनका कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत अच्छा है, तो उसमें अपने डायरेक्ट नेट प्रॉफिट देख लिया तो भी प्रॉब्लम नहीं आता है। सो इफ यू सी अगेन 2015 में जो उनका इश्यू हुआ था तभी उनका प्रॉफिट ड्रॉप हुआ था, बट इफ यू सी आफ्टर दैट एंड बिफोर दैट वो काफी कंसिस्टेंट है और उनका वो शेयर प्राइस में भी अपने को इम्पैक्ट दिख रहा है। सो क्यों इधर नेक्स्ट स्टेप अपने को ईपीएस दिखना है। आपने को अर्लियर लेक्चर में बताया था हाउ इज ईपीएस डिराइव, कि टोटल प्रॉफिट कितना है डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कितना है, और उस हिसाब से डिसाइड होता है कि नंबर प्रॉफिट पर शेयर अपॉन सो प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ शेयर, उसके ऊपर आउटस्टैंडिंग शेयर के ऊपर डिसाइड होता है। तो दैट इज रियली व्हाई वी सी कि आपको ये ईपीएस इधर ही देख लेना चाहिए साथ में। सो ईपीएस बढ़ रहा है। सो टू गिव यू सिंपल डेफिनेशन, मार्केट में बहुत सारे लोग ये बोलते हैं, राकेश झुनझुनवाला भी यही बोलते हैं कि स्टॉक प्राइस अर्निंग का गुलाम है। अब अर्निंग कंसिस्टेंटली बढ़ रही है तो आपका स्टॉक प्राइस बढ़ना चाहिए। सो ये कहाँ से दिखेगा अपने को, सिंपल एग्जांपल नेट प्रॉफिट और ईपीएस से दिखेगा। सो आइडिया ये है कि अगर आपका ईपीएस ऑर्गेनिकली बढ़ रहा है, अच्छी तरीके से बढ़ रहा है, तो उसमें कोई इश्यू नहीं आना चाहिए। सो एनी डाउट टिल नाउ? पीएनएल में कुछ आपको एडिशनली समझना है? इफ देयर एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग पीएनएल प्लीज आप ग्रुप पर डाल देना। मैं आपको बहुत एक्सटेंसिवली पीएनएल में नहीं समझा रहा हूँ, एग्जैक्टली बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं वो नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ जो इंपॉर्टेंट है कि जो बेयर मिनिमम आपको देखना चाहिए उसी हिसाब से बता रहा हूँ। अब व्हेन वी कम अप आफ्टर पीएनएल क्या हम देखेंगे कि कंपनी का, जस्ट अ सेकेंड, उसके बाद अपने को देखना है कि पीएनएल के बाद उसका बैलेंस शीट क्या है। मतलब अपने बिजनेस में भी बहुत बार बोलते हैं कि कंपनी का बैलेंस शीट अच्छा नहीं है, कंपनी का बैलेंस शीट अच्छा नहीं है। बैलेंस शीट का मतलब क्या है, व्हाट वी से अबाउट इट। बैलेंस शीट मतलब, बैलेंस शीट में आपको बहुत सिंपल बोलता हूँ, अपने जैसे बचपन में देखते थे LHS इज इक्वल टू RHS, वैसे ही बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट, वैसा ऑटोमेटिक आएगा ही, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में रिक्वायरमेंट है, तो उसके निटी ग्रिटीज में नहीं जाएंगे। बट अगर इसका फाइनल वैल्यू आपका बहुत ज्यादा है, दैट मीन्स कि आप मतलब व्हाट यू वांट टू डू इज एक्चुअली हैपनिंग, मतलब आपका बैलेंस शीट का वैल्यू बढ़ रहा है। बैलेंस शीट का वैल्यू कैसे बढ़ेगा, आपका अर्निंग जो है, अर्निंग में से आप कुछ अपने प्रमोटर को दे दोगे, शेयर होल्डर्स को दे दोगे,
बाकी का पैसा आप बिजनेस में री इन्वेस्ट करोगे, तो बिजनेस में जो री इन्वेस्टमेंट होगा उसमें से एसेट क्रिएट करोगे, आपका इन्वेस्टमेंट्स क्रिएट करोगे, उस हिसाब से आपका बैलेंस शीट मजबूत दिखता है। आई विल शो यू कपल ऑफ एग्जांपल। मैं आपको बहुत डाइवर्स एग्जांपल दिखाने वाला हूँ, एक HUL का और दूसरा L&T का, क्योंकि HUL नेट कैश बिजनेस है। हम लोग बहुत बार सुनते हैं कि नेट कैश बिजनेस सेफर होते हैं, नेट डेट बिजनेस रिस्कियर होते हैं। तो नेट कैश और नेट डेट आपको कैसे देखना है वो मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। So I'll start with HUL. आप HUL में देखोगे ये, so उनका बोरोइंग्स आप देखोगे काफी रीजनेबल है कंपेयर टू व्हाट, कंपेयर टू देयर टोटल इन्वेस्टमेंट आप देखोगे, या तो फिर उनका अदर एसेट देखोगे। अदर एसेट में इधर आपको आएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश इक्विवेलेंट मतलब या तो फिर बैंक में पैसा पड़ा है या तो फिर उन्होंने गवर्नमेंट ट्रेजरी में डाला है, जो वो चाहे तो T+1 डे में उनके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तो अगर टोटल बोरोइंग भी दो टाइप का रहेगा, लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म बोरोइंग यूजुअली लोग कैपेक्स के लिए यूज करते हैं कि उनको कोई नया असेंबली लाइन डालना है, नया प्रोजेक्ट डालना है, नया प्लांट को सेटअप कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म बोरोइंग रहता है बेसिकली कि उनको वर्किंग कैपिटल के लिए। सो इस हिसाब से आपको देखना है कि यूजुअली इट्स नॉट मतलब सारे सेक्टर्स में अलग अलग चीजें होती है, बट यूजुअली जितना लॉन्ग टर्म बोरोइंग कम है उतना बिजनेस सेफर माना जाता है। काफी बिजनेस ऐसे है कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग बिना चल ही नहीं सकते। फॉर एग्जांपल पावर सेक्टर में हो गया या तो फिर मेटल सेक्टर में हो गया, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग उसमें रहेगा ही, बट कितना है उस हिसाब से आपको देखना चाहिए। यूजुअली ये हम लोग बोलते हैं कि डेट टू इक्विटी जितना लो हो, मतलब ये डेट की बात होती है, बोरोइंग की बात हो रही है, जितना लो हो उतना बेटर है। So, आपको देखना है कि बोरोइंग रीजनेबल है कि नहीं है। तो यूजुअली हम कंपेयर करते हैं बोरोइंग को उनके इन्वेस्टमेंट्स के साथ। कि इन्वेस्टमेंट क्या होगा कि फॉर एग्जांपल HUL के पास जो ट्रेजरी में पैसा है वो उनने कोई दूसरी कंपनीज में इन्वेस्ट किया है तो वो आ सकता है, या तो फिर उनने कोई डिफरेंट टाइप का म्यूचुअल फंड में वो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो भी आ सकता है। अदर एसेट में आपको क्लियर कट सारी एंट्री दिख जाती है कि ये 4,400 करोड़ का HUL के पास इन्वेंट्री था एज ऑफ सितंबर 2022। आप कैश इक्विवेलेंट देखोगे तो 3,951 था, मतलब आप देखोगे लगभग उनका टोटल उधारी है 1,139 का, उसके सामने उनके पास कैश इक्विवेलेंट पड़ा है ऑलमोस्ट 4,000 रुपए का। तो दिस कंपनीज रिलेटिव कैश रिच है, उनको उधारी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको इंटरेस्ट का कोई इश्यू आएगा नहीं। उसके सामने मैं आपको थोड़ा अलग टाइप का कंपनी दिखाता हूँ व्हेन इट कम्स टू बैलेंस शीट। ये है L&T, लार्सन एंड टूब्रो। आई एम प्रीटी श्योर कि लार्सन एंड टूब्रो अपने ग्रुप में बहुत सारे लोगों के पास होगा। लार्सन एंड टूब्रो, L&T इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर अवर इकोनॉमी को अगर 3 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन तक जाना है तो L&T इज गोइंग टू प्ले एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रोल। सो मैं ये बोरोइंग उसका ज्यादा है वो बोलूंगा तो मतलब सो आई एम गिविंग दिस डिस्क्लेमर क्योंकि मैं उसके बारे में थोड़ा बुरा बोलने वाला हूँ। तो आप देखोगे L&T को, तो L&T का मार्च 2011, सो 12 इयर्स अगो उनका बोरोइंग 37,000 था, अभी उनका 1,29,000 है। तो उनका बोरोइंग बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो उनका बोरोइंग जितना बढ़ रहा है उस हिसाब से उनका कैश इक्विवेलेंट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है वो देखना जरूरी है। तो कैश इक्विवेलेंट उनका उतना नहीं बढ़ रहा है, थोड़ा रिस्कियर साइड पर है ये। इन्वेस्टमेंट्स ऑफ कोर्स उनका है, उधर से उनको रेगुलर इनकम आता रहता है, बट इफ यू लुक एट कंपेयर टोटल इन्वेस्टमेंट एंड लिक्विड एसेट्स कैश इक्विवेलेंट कंपेयर टू बोरोइंग, तो बोरोइंग बहुत ज्यादा है। तो रिलेटिवली लोग बोलते हैं थोड़ा रिस्कियर हो सकता है। अब गिव यू सिंपल एग्जांपल, L&T इज अ ग्रेट कंपनी, उसको ऑर्डर बुक मिलता रहता है, उस हिसाब से वो कंपनी से लोन उठा पाता है। लेट्स से मेरा कोई फ्रेंड होगा, वो मेरे से एक बार लोन मांगेगा, वो उसने पे कर दिया तो मैं वापस उसको लोन देता रहूंगा। बट अगर उसने 2 बार 3 बार 4 बार पे नहीं किया तो शायद मेरा खास फ्रेंड होगा तो भी मैं उसको लोन नहीं दूंगा। दैट इज अ सिंपल अंडरस्टैंडिंग कि बोरोइंग अगर बहुत ज्यादा है और फॉर वॉट एवर रीजन उनका पेमेंट में इश्यू आता है तो फिर उनका ऑर्डर बुक में इश्यू आता है तो लोन बिकम्स अ बैड थिंग। जिसमें आपको उसका इम्पैक्ट P&L में भी एक बार दिखाता हूँ। सो L&T का P&L देखोगे अगर तो लेट्स से इफ आई टॉक अबाउट लास्ट 10 इयर्स कि 2012 से लेके 2022
तो प्रॉफिट उनका देखो 64,000 से 1,56,000 का है, तो प्रॉफिट ऑलमोस्ट 2.25 गुना हुआ है। बट उसके सामने आप देखोगे 3 गुना 3.25 गुना के आसपास, बट उसके सामने आप देखोगे इंटरेस्ट तो 3,000 करोड़ से 9,200 करोड़ हुआ, इसलिए इंटरेस्ट बर्डन उनका बहुत बढ़ रहा है। थैंकफुली उनने लास्ट 12 मंथ्स में TTM मतलब ट्रेलिंग 12 मंथ्स, लास्ट 4 क्वार्टर का क्या रिजल्ट था, उसमें उनका इंटरेस्ट बर्डन थोड़ा कम हुआ है। कोविड के बाद उन लोग ने अपना पॉलिसी थोड़ा बहुत चेंज किया है व्हेन इट कम्स टू इंटरेस्ट कितना लेना पड़ रहा है, तो दैट इज अ गुड थिंग। आप देखोगे तो बोरोइंग में भी मैं दिखाऊंगा आपको, कोविड वाले ईयर में था, उसके बाद नेक्स्ट ईयर कम हुआ, उसके बाद नेक्स्ट ईयर वापस कम हुआ, सो दे आर डूइंग समथिंग व्हिच इज गुड। और ऑफ कोर्स इंटरेस्ट परसेंटेज भी कम था, अपना RBI ने रेपो रेट कम किया तो उस हिसाब से उनको वो इंटरेस्ट बर्डन भी कम था। जब जैसे मैंने बोला बोरोइंग में आपको 2 चीज देखना है, लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है, वैसे ही आपको एसेट साइड पर 2 चीज देखना है कि फिक्स्ड एसेट होगा और उनको लेट्स से इनके पास जमीन पड़ा है 1,350 करोड़ का, वो जमीन कब बिकेगा कब नहीं बिकेगा, अगर फॉर व्हाटएवर लिक्विडेशन के लिए चाहिए तो वो इश्यू हो सकता है। प्लांट मशीनरी बिकेगा नहीं बिकेगा, कितने भी बिकेगा, वो इश्यूज आ सकता है। बट अगर लिक्विड एसेट है इन टर्म्स ऑफ लेट्स से इन्वेंट्री है तो शायद तुरंत निकल जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल मतलब उनको इतना पैसा उनके क्लाइंट से लेना बाकी है, मतलब L&T के लिए गवर्नमेंट इज वन ऑफ द बिगेस्ट क्लाइंट, तो शायद उनको गवर्नमेंट से लेना बाकी है, तो ये पैसा शॉर्ट आ ही जाएगा, वैसा वी कैन एक्सपेक्ट। तो इस हिसाब से आपको लिक्विड एसेट मतलब ऐसे आपको देखना है, लिक्विड एसेट है कि लॉन्ग टर्म एसेट है लाइक लैंड बिल्डिंग मशीनरी। सो अपने एक्चुअली ये बैलेंस शीट और P&L इसके बारे में तो अपने सारे लोग बात करते हैं। प्रॉब्लम आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट में। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्यों प्रॉब्लम आता है, क्योंकि अपने जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है उसमें इंडिविजुअली आप जब भी आप ITR भरते हो, एज अ बिजनेस आप ITR भरते हो, तो कभी भी आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट देना नहीं पड़ता है, लिस्टेड कंपनीज को देना पड़ता है। तो इसलिए कैश फ्लो क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको पहले समझा देता हूँ। कैश फ्लो में सिर्फ और सिर्फ वही चीजें रिकॉर्ड होती है जो एक्चुअल कैश ट्रांजैक्शन हो चुका है। दैट मीन्स अगर किसी कंपनी का क्रेडिट सेल्स है, फॉर एग्जांपल आज जनवरी 19 में मैंने मेरी कंपनी ने 1 लाख रुपए का माल बेचा, बट मेरे को पेमेंट 3 महीने के बाद अप्रैल में मिलना है, तो सेल्स मेरा इस फाइनेंशियल ईयर में आ जाएगा, बट कैश मेरे को नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आएगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट ये प्रॉब्लम हटा देता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या बोलता है कि इस साल तुम्हारा क्या भी जो ट्रांजैक्शन हुआ, पैसा आया कि गया, सारा का सारा आपको इसी फाइनेंशियल ईयर में दिखाना है। प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर वाला होगा तो आपको उस हिसाब से मतलब प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर वाला का कैश ट्रांजैक्शन इस ईयर नहीं आएगा, इस ईयर का नेक्स्ट ईयर नहीं जाएगा। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में जेन्युइन आपका पास पैसा कितना बढ़ता है वो समझ में आएगा। आपके बहुत सारे टेक्सटाइल में भी फ्रेंड्स हो गए, आप उनको पूछना, वो उनका एक कॉमन इश्यू रहता है कि हम लोग जो मार्जिन डिसाइड किया था उस हिसाब से बैलेंस शीट अपना उतना पॉजिटिव दिख रहा है, P&L उतना पॉजिटिव दिख रहा है, बट देखता हूँ बैंक बैलेंस तो बैंक बैलेंस में उतना पैसा आया नहीं होता है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि कैश फ्लो के चक्कर में ये इश्यू होता है। अब कैश फ्लो में 3 कैटेगरी हो सकता है। पहला ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कि उनका जो भी कोर बिजनेस है, कोर बिजनेस में उनका जो भी पैसा आया कि गया वो देखना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी रिसेंटली आपको HUL का बात किया था। HUL का कोर बिजनेस क्या है, उनके जितने भी प्रोडक्ट्स है हेयर केयर के लिए, फेस के लिए, बॉडी केयर के लिए, किचन के जो भी चाय पत्ती वॉटेवर जो रहता है वो उनका कोर बिजनेस है। तो कोर बिजनेस में जो भी रेवेन्यू उस फाइनेंशियल ईयर में आया, जो रेवेन्यू उनके बैंक अकाउंट में क्लिक हो गया, वो पॉजिटिव कैश फ्लो दिखाएंगे। जो पेमेंट उनने कर दिया रॉ मटेरियल के लिए, वो सारा का सारा वो कैश आउटफ्लो हुआ वैसा दिखाएंगे। कैश इनफ्लो होगा तो पॉजिटिव साइन डायरेक्शन प्लस दिखाएंगे, कैश आउटफ्लो होगा तो माइनस दिखाएंगे। वैसे ही दूसरा आता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब जैसे L&T ने बहुत सारा एसेट खरीदना पड़ता है, या तो फिर कहीं और इन्वेस्ट करते हैं, कोई सब्सिडरी में इन्वेस्ट करते हैं, वो सारी चीजें उनका इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में आएगा। अगर वो लेट्स से कोई उनने जमीन खरीदा है, अब जमीन जब बेचेंगे, फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी ने जमीन बेचा, तो जमीन बेचा तो अदर इनकम में आएगा, करेक्ट, बट उनका कोर बिजनेस नहीं है, तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में वो पैसा आपको रिफ्लेक्ट होगा। उससे आपको पता चलेगा कि कंपनी का कोर बिजनेस से पैसा कितना बढ़ रहा है और उनका अदर इनकम से कितना बढ़ रहा है, अदर एक्टिविटी से कितना बढ़ रहा है। यूजुअली जब भी इन्वेस्ट करते हैं तब हम लोग उनके कोर बिजनेस के लिए इन्वेस्ट करते हैं।
अब इन्फोसिस या टीसीएस के पास बहुत सारा कैश पड़ा होगा, कैश वो लोग कभी भी लिक्विड फंड में डाल रहे, उधर से इनकम जनरेट हो रहा है, तो उसके लिए हम लोग नहीं डालेंगे इन्फोसिस या टीसीएस में पैसा। उनका आईटी सर्विसेज कितना अच्छा बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है उसके ऊपर हम लोग इन्वेस्ट करेंगे। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप ये डिफरेंशिएट करें। मैं इसमें अब डिविडेंड वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आप वो इग्नोर कर सकते हो, वो थोड़ा ज्यादा ही टेक्निकल हो जाएगा। डिविडेंड वाला दोनों में आप इग्नोर कर देना। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगेन टेकिंग एग्जांपल ऑफ लेट्स से सेल। अब सेल के पास हमेशा पैसा होगा नहीं, या टाटा पावर के पास हमेशा पैसा होगा नहीं। टाटा पावर या तो फिर लोन इश्यू करवाएगा, या तो फिर वो डिबेंचर्स या बॉन्ड्स कभी बहुत बार आते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड, तो वैसे वो लोग पैसा रेज करते हैं। तो वो उनका इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी नहीं हो, वो उधर उनका फाइनेंसिंग के लिए स्पेसिफिकली तो फाइनेंसिंग में जाता है। तो आपको कंपनी का ऑपरेटिंग एक्सेलेंस कितना है, फाइनेंसिंग एक्सेलेंस कितना है वो समझना है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ मच बेटर वे। अगेन स्क्रीनर में बहुत इजीली अपने को दिख जाता है, सो आई विल शो यू हाउ इट वर्क्स। स्क्रीनर पहले से क्लासिफाई करके दे देता है, सो जस्ट अ सेकेंड। तो लेट्स से टाटा पावर का मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करता हूँ। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग, ये तीनों चीज बता दिया। आप देखोगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हमेशा फ्लक्चुएटिंग है, ठीक है, मतलब फ्लक्चुएटिंग है, मतलब वो उनका कोई सेट पॉलिसी नहीं है, तो फिर कभी उनका बिजनेस बढ़ रहा है, कभी कम हो रहा है। हम लोग को कभी भी द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन आई विल टेल यू, कभी भी ये सारी चीजें आइसोलेशन में नहीं देखनी, सारा का सारा एज अ जर्नी देखना है। आप देखोगे इसमें इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, तो ये लोग कुछ ना कुछ फिक्स्ड एसेट परचेस करे जाते हैं। तो जैसे मार्च 2022 वाले फाइनेंशियल ईयर में उन्होंने 14,500 करोड़ का फिक्स्ड एसेट लिया। ये सारी चीजें इसमें आपको पता चलेगा कि वो लोन ले रहे हैं, तो लोन लेट्स से वो इधर अपने को दिख जाएगा कि लेट्स से उन्होंने लोन लिया है कि नहीं लिया है। प्रोसीड्स फ्रॉम बोरोइंग, मतलब इतना लोन लिया, अब ये लोन लेके उन्होंने पैसे का किया क्या, तो इधर अपने को क्लियर कट पता चल जाएगा कि उन्होंने फिक्स्ड एसेट परचेज किया। सो लोन किसी सेक्टर में लेना जरूरी है, जस्ट लाइक पावर सेक्टर, बट वो लोन लेके वो पैसे किस हिसाब से यूटिलाइज कर रहे हैं, उधर से आगे आपको रेवेन्यू जनरेशन होना ही नहीं होना, वो देखना आपको जरूरी है। तो इस हिसाब से आप ये चीज देख सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया कभी कभी फिक्स्ड एसेट्स सेल करते हैं, तो ये आपका अदर इनकम में दिख सकता है, तो अदर इनकम के चक्कर में उनका प्रॉफिट इन्फ्लेट हो सकता है, तो वो देख के आपको वो कंपनी अच्छी है वैसा डिसाइड नहीं करना है कि वो टर्न अराउंड हो जाएगी, वैसा आपको डिसाइड नहीं करना है। सो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी एंड इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, ऐसे करके तीन चीज है। एनी डाउट रिलेटेड टू कैश फ्लो स्टेटमेंट, क्योंकि इसमें बहुत डाउट आ सकते हैं, तो आप कुछ भी हो तो प्लीज आप चैट बॉक्स में डाल दो। दिस इज रिलेटिवली कैश फ्लो इज रिलेटिवली न्यू कॉन्सेप्ट विच आई बिलीव इवन फॉर कॉमर्स और कॉमर्स बैकग्राउंड के लोगों के लिए, इसलिए मैं उसमें थोड़ा एम्फोसिस कर रहा हूँ। इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज आप नोट करके रखो, विल डेफिनेटली एड्रेस इट। सो आफ्टर कैश फ्लो एक्चुअली हमेशा सारे लोग बोलते हैं कि प्रमोटर होल्डिंग कितना है, प्रमोटर होल्डिंग में सब बात करते हैं। अब तो शेयर होल्डिंग पैटर्न की मैं बात करूं, प्रमोटर, एफआईआई, डीआई, पब्लिक, ये चार बेसिक क्राइटेरिया आ सकता है। प्रमोटर मतलब तो कंपनी के जो भी ओनर रहेंगे, जिसने आईपीओ कंपनी का लाया रहेगा, वो प्रमोटर रहते हैं। अब प्रमोटर में जितना हायर प्रमोटर के पास स्टेक है उतना यूजुअली बेटर रहता है। ऐसा नहीं बोलूं कि हमेशा बेटर है, यूजुअली बेटर रहता है, क्योंकि अब प्रमोटर के पास 75% स्टेक है फॉर एग्जांपल, जो अपर कैप है। आप कंपनी लिस्ट करो तो 3 साल में आप एट मैक्सिमम 75% स्टॉक अपने पास रखते हो, बाकी आपको बेचना पड़ेगा पब्लिक में। आपको अगर ध्यान होगा तो डीमार्ट ने 2021 में उन्होंने बहुत सारा ओएफएस लाया था कि ऑफर फॉर सेल, कि प्रमोटर अपना स्टेक खाली कर रहा था, क्योंकि वो मैंडेट है सेबी का। तो प्रमोटर स्टेक अगर ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली क्या है कि उधर कंपनी अगर अच्छा करेगी तो उनका ऑटोमेटिकली अच्छा होगा, तो उस हिसाब से बोलते हैं कि अगर प्रमोटर ज्यादा है तो बेटर है। सो हैविंग सेड दैट, आपको अगर सेम प्रमोटर की बहुत सारी कंपनीज है तो वो देखना जरूरी है कि वो मतलब वो कंपनी में भले 75% उनका शेयर होल्डिंग है, बट क्या वो कंपनी से उनका घर चलने वाला है कि नहीं चलने वाला है।
फॉर एग्जाम्पल बजाज फाइनेंस की मैं बात करूं तो बजाज फैमिली की बात करूं तो अपने को पता है बहुत अच्छी फैमिली है, उनके सारे बिजनेस अच्छे कर रहे हैं, बट बजाज ग्रुप को बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व टुगेदर और बजाज ऑटो से उनको ज्यादा मतलब है, तो शायद बजाज इलेक्ट्रिकल अगर वो बंद कर देंगे तो भी उनके घर को कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, उनके वैल्यूएशन को कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। FII में कौन कौन आते हैं? फॉरेन इंस्टीट्यूट। तो फॉरेन इंस्टीट्यूट दो टाइप के रहते हैं, जो इंडिया में रजिस्टर किया होता है FII, जैसे कि गोल्डमैन सैक्स हो गया, JP मॉर्गन हो गया, वो सब इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, तो दे कम अंडर द FII कैटेगरी। और दूसरा फॉरेन गवर्नमेंट रहते हैं, या तो फिर गवर्नमेंट के बॉडी हो सकते हैं, जैसे कि कनाडा का पेंशन का जो कंपनी है, वो लोग कनाडा पेंशन बहुत अच्छा देती है उनके सारे सिटीजन को, तो वो पैसा भी वो लोग ऐसे इंडिया में डालते हैं। इसमें एक चीज देखना, डिस्कस समझना बहुत जरूरी है कि जब भी वो लोग इंडिया में पैसा डालते हैं तो वो सिर्फ इंडिया में नहीं डालते हैं, वो एक एमर्जिंग मार्केट्स बास्केट में डालते हैं। तो एमर्जिंग मार्केट बास्केट में मैक्सिमम पैसा आता है। इंडिया डेडिकेटेड फंड आज की तारीख में सिर्फ 6% है, आपको मैक्सिमम टाइम आपको इंडिया एमर्जिंग मार्केट अगर अच्छा करे तो इंडिया में पैसा आएगा, सिर्फ और सिर्फ इंडिया आइसोलेशन में यूजुअली पैसा नहीं आता है। तो एमर्जिंग मार्केट में फॉर एग्जांपल चाइना हो गया, चाइना में उन लोग ने अभी वेटेज काफी कम कर दिया है, रशिया से 0 कर दिया है, ब्राजील हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, अगर सारी इकोनॉमी खराब करिए सिर्फ इंडिया अच्छा करिए तो भी शायद FI इंडिया में नहीं डालेगी, क्योंकि वो एमर्जिंग मार्केट साल में बदल सकता है, क्योंकि नेक्स्ट 2 साल में देयर आर मेनी ऑर्गेनाइजेशंस हु आर प्लानिंग टू ब्रिंग इंडिया डेडिकेटेड फंड्स। तो वैसा होगा तो अगर बाकी की एमर्जिंग मार्केट्स अगर अच्छा नहीं करेगी और सिर्फ इंडिया अच्छा करेगी तो इंडिया के पास बहुत ज्यादा फंड्स आ सकते। का इंटरेस्ट रेट्स होता है वो भी स्क्रीनर पर इधर दिखता है। सो आप देखोगे तो दिसंबर में ही बजाज का जो प्रमोटर ग्रुप है उनने अप्रोक्सीमेटली क्वांटिटी उन्हें बजाज फाइनेंस का उठाया एट प्राइस ऑफ 6,487। तो जब प्राइस फॉलो रहा था वो लोग भी इंटरेस्ट हो गए कि हम लोग के पास पैसा है तो हम लोग उठा सकते हैं। दैट शोज कि प्रमोटर आर एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट इन द बिजनेस, तो ये लेवल पर बाई करना है तो कर सकते हैं वैसा। तो प्रमोटर ने उस हिसाब से वैल्यूएशन डिसाइड किया है। हैविंग सेड दैट ये मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, अच्छी कंपनी है, बट यू टेक योर ओन डिसीजन ऑन द बेस ऑफ योर ओन रिस्क प्रोफाइल। जैसे दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, अब प्रमोटर में जो एक चीज और देखना चाहिए वो है, जैसे कि मैं अदानी की बात करूं तब इधर एक्चुअली मैंने ना ये मेरे पास वॉच लिस्ट में मैंने ये चीज पहले से ऐड करके रखी है कि प्रमोटर होल्डिंग इतना है। प्रमोटर ने रिसेंटली 0.35% बेचा है अदानी एंटरप्राइज में, और प्रमोटर ने अप्रोक्सीमेटली 2.66% प्लेज किया हुआ है। तो प्लेज ये रिस्की लेवल पर नहीं है, बट अगर कंपनी बहुत ज्यादा प्लेज कर रही है, और प्लेज क्यों करती है? यूजुअली पैसा रेज करने के लिए कि मेरे पास मेरे इतना शेयर है, बैंक को दे दिए प्लेज करने का, उसके सामने पैसा उठा दिए, दे कैन यूज फॉर एनी पर्पस, एनी बिजनेस पर्पसेस। तो प्लेज परसेंटेज अगर बहुत ज्यादा है तो वो रिस्की हो सकता है। सो आपने बहुत बार सुना होगा कि अदानी बहुत सारी कंपनीज खरीद रहे हैं, तो कैसे खरीद रहे हैं? ये सब प्लेज करके। शेयर प्राइस बढ़ता है, वो थोड़ा बहुत प्लेज कर देते हैं, उसके सामने उनको पैसा मिल जाता है और वो एक दूसरा एक्विजिशन जल्दी कर सकते हैं। इतने सारे एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, जो सी पोर्ट्स है वो एक्वायर कर रहे हैं इंडिया में बाहर, वो इस हिसाब से वो लोग कर पा रहे हैं। रिसेंटली आपने सुना होगा वेदांता ने अनाउंस किया था कि इंडिया में वो विद द हेल्प ऑफ ताइवानीज कंपनी इंडिया में सेमीकंडक्टर बनाने वाले हैं। तो आप देखोगे कि इतने उसके लिए इतना पैसा कहाँ से आएगा? से बहुत इजी है, उनका जितना भी होल्डिंग है 69.7% वो सारा उन्होंने प्लेज किया है। मतलब
1.25 करोड़ का जो 1.25 लाख करोड़ का जो वैल्यूएशन है उसमें 70% इनके पास है। सो मोटा मोटी उन्हें 75,000 करोड़ का लोन लिया है प्लेज करके। सो ऑफ कोर्स अपने को ट्रैक रिकॉर्ड पता ही ये कंपनी हमेशा लोन रीपे कर दिया, कुछ इश्यू लाया नहीं है, बट अगर प्लेज परसेंटेज बहुत ज्यादा है और रिस्की कंपनी है तो आप समझ जाना कि आगे जाके इश्यू आ सकता है। सो आपको ये तीन चार चीजें मेजर ध्यान रखना है व्हेन इट कम्स टू शेयर होल्डिंग, कि प्रमोटर के पास कितना परसेंटेज है, हायर द बेटर। सेकंड, प्रमोटर ज्यादा माल बेच नहीं रहा है। थर्ड, प्लेज नहीं करे तो बेटर है। ये 3 चीजें जो आप बहुत इजीली देख सकते हो। अब कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट, वी आर कमिंग टुवर्ड्स द एंड। अगर आपको कुछ बोर हो रहा है तो आई जस्ट इन्फॉर्म यू। आई होप दिस डेटा इज बीइंग एक्चुअली वो आपको हेल्प कर रहा है, आगे जाके आपको डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। When it comes to ratios, मैंने थोड़े डिफरेंट रेशियोज भी साथ में लिए हैं कंपेयर टू जो आपको आरओसी तो लास्ट वीक में भी आपको समझाया था, बट ये थोड़ा डिफरेंट लिया है मैंने। ये ऑपरेशनल रेशियोज मैंने ज्यादा ध्यान दिया इसके ऊपर कि डेटर डेज, कि कितने दिन के बाद उनको जो कंपनी के कस्टमर से पैसा लेने कितने दिन में मिल जाता है। यूजुअली डॉक्टर में आपका उधारी वाला सिस्टम नहीं चलता है, तो आपका डेटर डे 0 या 1 आएगा कि आपको सेम डे में पैसा मिल जाता है। अगर टेक्सटाइल की बात करूं सूरत में, तो टेक्सटाइल में यूजुअली उनको 3 से 6 महीने में पेमेंट मिलता है, तो उनका डेटर डेज समवेयर अराउंड 100 डेज के आसपास आएगा। पेबल डेज क्या होता है कि उनको वो अपने सप्लायर को कितने दिन में दे रहे हैं। सो लेट्स से आपने कोई मशीनरी लिया है, कोई ओटी के लिए कोई मशीनरी लिया है, तो मशीनरी के लिए आपको कितना दिन मिलता है वो आपको पेमेंट करने के लिए। तो वो फॉर एग्जांपल 45 डेज का विंडो रहेगा, तो आपका डेज पेबल 45 आएगा। टेक्सटाइल में आई गिविंग एग्जांपल ऑफ टेक्सटाइल क्योंकि आपके बहुत सारे फ्रेंड्स टेक्सटाइल में हो सकते हैं, फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, तो आप रिलेट कर पाओगे। टेक्सटाइल में यूजुअली क्या 2 महीने के अंदर 3 महीने के अंदर उधर पेमेंट साइकिल घूमता है, तो उधर आपको उस हिसाब से डेज पेबल पता चल जाएगी कि वो अपने सप्लायर को कितना जल्दी दे रहे हैं। अब ब्यूटी का आएगी कि वो पैसा कस्टमर से बहुत जल्दी आ रहा है और पैसा सप्लायर को बहुत लेट दे रहे हैं, तो उधर उनको पैसा वर्किंग कैपिटल या तो फिर उनके पास स्पेयर पैसा हमेशा बढ़ जाएगा। सो मैं आपको मारुति सुजुकी का क्लासिक केस बताऊंगा, उधर आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे समझना चाहिए इस चीज को। इन्वेंट्री डेज क्या है? व्हेन इट कम्स टू इन्वेंट्री डेज, फॉर एग्जांपल लेट टेक एग्जांपल ऑफ डीमार्ट के पास इतना सारा इन्वेंट्री रहता है, ऑन एन एवरेज पूरा इन्वेंट्री उनका कितने दिन में खत्म हो जाता है। अगर इन्वेंट्री सेल्स से जल्दी खत्म हो रहा है तो दैट मींस वो लोग उनके क्लाइंट बेस के हिसाब से उन लोगों ने बहुत अच्छा मैनेज किया है। अगर इन्वेंट्री डेज बहुत ज्यादा है, मतलब कि वो लोग बहुत ज्यादा पैसा उनका उधर होल्ड हो जाता है, तो ऑपरेशनली दे माइट नॉट बी डूइंग समथिंग व्हिच इज करेक्ट। आरओसी तो आपको बताया था कि धंधे में कितना रुपया लगाया उसके ऊपर कितना रुपया बन रहा है, वो जितना ज्यादा उतना बेटर। आरओसी में एक चीज आपको बता देता हूँ कि आपको कभी भी किसी कंपनी का कंपेयर कर रहे हो, नॉट ओनली फॉर आरओसी, कोई भी रेशियोज या कोई प्रॉफिट मार्जिन या कोई भी चीज अगर आप कंपेयर कर रहे हो, तो आपको वो कंपनी का आइसोलेशन में नहीं देखना है, वो सिर्फ और सिर्फ उनके सेक्टर में किस हिसाब से कर रहे हो वो आपको देखना है। अगर आरओसीई की मैं बात करूं कि मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं मारुति सुजुकी का अगर कंपैरिजन लूं, तो मारुति सुजुकी का कितना है, वो मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, एमएनएम वो सबके साथ कंपेयर करना है, नहीं कि मारुति सुजुकी और एचडीएफसी का कंपेयर करो। सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। रिटर्न ऑन इक्विटी का एक क्वेश्चन आया है, विल टेक दैट लेटर, डॉक्टर विमल विल टेक दैट लेटर। ओके, साथ में लास्ट चीज, हम लोग बहुत बार एक्चुअली वेबसाइट पर भी, मतलब ट्विटर पर देखते हैं या तो फिर आप व्हाट्सएप पर भी देखते हो कि पी कंपनी का कितना है, मार्केट का पी कितना है। पी बहुत बार इररिलेवेंट हो जाता है क्योंकि प्राइस और अर्निंग बहुत फ्लक्चुएटिंग रहता है। प्राइस पी जैसे कि आप देखोगे एफएमसीजी कंपनीज का बहुत ज्यादा रहता है, बैंकिंग का उनसे कम रहता है, आईटी का समवेयर इन बिटवीन रहता है। पी को ग्रोथ के साथ कंपेयर करोगे कि अगर ग्रोथ मेरे को 10% मिलने वाली तो 10% के लिए पी कितना होना चाहिए, अगर ग्रोथ मेरे को 20% का अर्निंग ग्रोथ
एक्सपेक्टेड है, तो उसके लिए मैं कितना पी दे सकता हूँ वो ज्यादा जरूरी रहता है। तो पीजी कंपेयर करें। सो टेक्निकली स्पीकिंग पीजी 1 या उससे नीचे है तो बहुत अच्छा है, जितना हाई होगा उतना रिस्कियर हो जाता है। Dr. Hiren will take this question as well towards the end. Thank you. मैं एक्चुअली ये क्या है कि बिकॉज लिमिटेड टाइम है, मेरे को ये चीज अभी जल्दी खत्म करना है मेरा प्रेजेंटेशन, एंड आई वांट टू टेक यू थ्रू द क्वेश्चन एंड आंसर इन द लेटर स्टेज. जस्ट अ सेकंड, आई विल टेक एग्जांपल ऑफ एवेन्यू सुपरमार्ट. अब एवेन्यू सुपरमार्ट देखोगे तो उसकी ब्यूटी क्या है कि वो उधारी पे काम करता नहीं है, उसको विद इन 1 डे उनको जो भी पैसा है उनको सारा पैसा मिल जाता है. अब जितना भी सेल्स करते हैं वो पैसा सारा का सारा उनको विद इन 1 डे उनका पेमेंट हो जाता है. अब वो अपने कितने डेज में वो पे करते हैं, तो वो 8 दिन फॉर मतलब 1 हफ्ता 1 दिन में वो पूरा का पूरा उनका पेमेंट कर देते हैं. तो ये जितना ज्यादा फास्ट पेमेंट करेंगे उतना अपने सप्लायर पर प्रेशर कर सकते हैं कि आप मेरे को डिस्काउंट ज्यादा दो. तो ये चीज का बेनिफिट रहता है. मतलब आपको एक्सरसाइज देता हूँ सबको. एवेन्यू सुपरमार्ट क्यों अभी तक चल रहा है? एवेन्यू सुपरमार्ट और बिग बाजार दोनों सेम टाइम पर शुरू हुआ था. बिग बाजार एक्चुअली ने शुरू किया था कि हम लोग को आदत लगाया था कि ऐसे बड़े स्टोर्स में जाके हम परचेस करें, बट बिग बाजार आज कोलैप्स हो गया, फ्यूचर ग्रुप कोलैप्स हो गया. और एवेन्यू सुपरमार्ट क्यों कोलैप्स नहीं हुआ है, आप सिर्फ ये रेशियो देखोगे तो भी आपको बहुत चीजें समझ में आ जाएगी कि उनका इन्वेंट्री 38 डेज में खत्म हो जाता है. मतलब साल में लगभग 10 बार पूरा इन्वेंट्री घुमा लेते हैं, सारा का सारा पैसा 10 बार घुमा लेते हैं. ये एक्सरसाइज आप खुद करोगे तो आपको समझ में आएगी कि ये कंपेयर टू एनी अदर स्टोर्स ये लोग बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं. तो आपके दिमाग में जितने भी स्टोर टाइप आ रहे हैं, वी मार्ट हो गया, फ्यूचर ग्रुप हो गया, उनके नंबर इसके साथ कंपेयर करना, ये एक्सेलेंस आपको ऑटोमेटिकली उधर समझ में आ जाएगा. पीजी की जो मैं बात कर, सो ऐसा ही मैं एक्चुअली मारुति सुजुकी का एक चीज आपको दिखाना चाहता था. आप देखोगे डेटर डेज 8 दिन में उनको पेमेंट मिल जाता है, और पेमेंट करते कितने हैं? 54 डेज में. अब होता क्या है, आप गाड़ी बुक करने जाओगे, आपको बुकिंग अमाउंट अभी मांग लेंगे. वो बुकिंग अमाउंट के बेसिस पर आप क्या बोलते हैं, आपको गाड़ी वो फिर बनाना शुरू करेंगे और उनके सप्लायर को बोलेंगे, ओईएम्स को बोलेंगे आप मेरे को इन्वेंट्री दे दो, और उनको वो 54 डेज के बाद पेमेंट करेंगे. तो सप्लाई चेन में वो लोग बहुत स्वीट स्पॉट पर है कि उनको कभी भी उनको उधारी लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा, तो फिर बहुत लिमिटेड उधारी लेने का जरूरत पड़ेगा, और वो हमेशा सप्लायर पर प्रेशर डालकर कस्टमर्स का बेनिफिट लेके वो अपना बिजनेस कर पा रहे हैं. मतलब टेक्निकल वर्ड है ये, नेगेटिव वर्किंग कैपिटल पर काम करते हैं. तो ये करने वाली कंपनीज बहुत अच्छी रहती है, ये इसमें कोलैप्स होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं. एक चीज और एडिशनली मेरे को जो इसमें बताना था, जैसे पीजी रेशियो की मैं बात करूं, अभी मैं आई एम जस्ट टेकिंग सिंपल एग्जांपल ऑफ एचडीएफसी बैंक राइट नाउ. पीजी रेशियो एचडीएफसी बैंक का बहुत कम है. सो मतलब ये शायद लुक्रेटिव लेवल पर आ रहा है. उसका अर्निंग ग्रोथ आपने रिजल्ट अभी जो लास्ट वीक आया था आपने सबने पास आया होगा कि उसका रिजल्ट बहुत अच्छा था. उसके बाद भी शेयर प्राइस मूवमेंट बहुत नहीं हुआ है. तब मैंने एक्चुअली चेक किया तो उसका पीजी रेशियो काफी फेवरेबल है. तो हाँ, यहाँ से नीचे की साइड प्राइस जाने का चांसेस कम है, ऊपर की साइड ज्यादा है. फंडामेंटली स्पीकिंग टेक्निकल चार्ट पर कुछ भी अलग हो सकता है शॉर्ट टर्म के लिए. सो प्लीज चेक दैट एंड देन डिसाइड. आई एम जस्ट टेकिंग द फंडामेंटल पार्ट राइट नाउ. ये पूरा जो आपको मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बताए, उसमें एक चीज आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो मैंने जो भी बताया सारे के सारे नॉन बैंकिंग कंपनीज के लिए बताए. बैंकिंग कंपनीज के लिए अलग होगा, नॉन बैंकिंग के लिए सारी की सारी चीजें अलग आएगी. तो नॉन बैंकिंग एक पूरा ही अलग से एक चैप्टर है, बहुत बड़ा सेशन उसके लिए भी चलेगा. तो नॉन बैंकिंग को मैं भी टच नहीं कर रहा. व्हेन इट कम्स टू अंडरस्टैंडिंग पीएनएल एंड बैलेंस शीट, मतलब उनका बैलेंस शीट अलग तरीके से बनता है क्योंकि उनका बिजनेस लोन देने से, तो उनका बैलेंस शीट अलग तरीके से बनता है. एक लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं लेने जा रहा हूँ. आई विल टेक 5 more minutes and this is the most important thing of today's session as per my understanding. जब भी इन्वेस्टमेंट करे, आपका खुद का इंडिविजुअलिस्टिक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी होना चाहिए. जो मेरे लिए अच्छा है वो सब आप सबके लिए अच्छा ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि मेरा गोल असेसमेंट अलग है, मेरा रिस्क प्रोफाइलिंग अलग है. उस हिसाब से मेरा एसेट एलोकेशन अलग आएगा कि मैं इक्विटी में कितना डालूंगा,
डेट में कितना डालोगे, डेट मतलब इट कैन बी डेट म्यूचुअल फंड, इट कैन बी एफडी, इट कैन बी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, उसमें कितना डालूंगा, रियल एस्टेट में कितना डालूंगा, रियल एस्टेट में आपका फर्स्ट होम मत कंसीडर करना आप, क्योंकि फर्स्ट होम वो आपका इमोशनल रिक्वायरमेंट के लिए, वो आपको भी सेल नहीं करोगे, इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। सेकेंड होम हो गया, थर्ड होम हो गया, वो सब आप कंसीडर करना। गोल्ड कितना लिया, उस हिसाब से एसेट एलोकेशन आपका सही होगा आपके रिस्क प्रोफाइलिंग के हिसाब से, आपके गोल्स असेसमेंट के हिसाब से, तो आपका कभी भी आपको नींद खराब नहीं होगा। स्टॉक मार्केट ऐसी चीज है, कभी भी मार्केट में कुछ भी नया, मैं 2008 से लेके अब तक का हिस्ट्री बता दूं, लास्ट 15 साल का, 2 साल मार्केट ने बहुत गंदा फॉल दिया। 2008 वाला जब अप्रोक्सीमेटली 67% गिरा था, और 2020 वाला जिसमें अप्रोक्सीमेटली 38% 39% मार्केट गिरा था, ये दोनों को मैं हटा दूंगा ना, तो भी मार्केट में एवरेज फॉल हर साल का 14% है। तो मार्केट कारण ढूंढ लेगा गिरने का, बट वो गिरे तो आपको, आपकी नींद खराब नहीं होनी चाहिए। तो कैसे होगा, अगर आपका एसेट एलोकेशन सही से, आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से आपने इन्वेस्ट किया है तो। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है कि रिस्क रिवॉर्ड सारी इन्वेस्टमेंट का समझना जरूरी है। मार्केट में सर दो ही इमोशन चलते हैं, फियर क्या है, ग्रीड क्या है। किसी ने पैसा बनाया है इसलिए मेरा भी बन जाएगा, वो ग्रीड नॉट नेसेसरी हमेशा काम करे। फियर में फियर ऑफ मिसिंग आउट ज्यादा आता है कि सब पैसा बना लेंगे। क्रिप्टो में बहुत सारे लोगों ने ऐसे ही डाला था कि यार ग्रीड और फियर, ये दो चीज चक्कर में क्रिप्टो में बहुत सारे डाला था। आज थोड़ा उसमें इश्यूज चल रहा है, उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा वो सेकेंडरी चीज है, बट वो देख के नहीं इन्वेस्ट करना है। आपका अगर एसेट एलोकेशन सही है, लेट्स से आपने 100 रुपए में से आपने उधर 1 ही रुपया डाला, 1 रुपया जीरो हो जाएगा तो भी आपको टेंशन नहीं होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट 100 में से अगर आपने उधर 80 रुपए डाल दिया और वो 80 रुपए अगर आगे जाके जीरो हो जाते हैं, तो आपको पता है कि आपकी नींद खराब हो जाएगी। वैसा नहीं करना है। लास्ट सेशन में आपको मार्केट फेज के बारे में भी बहुत बताया था, करेक्ट। लास्ट सेशन में एक्चुअली एक क्वेश्चन है, व्हाट इज नेगेटिव वर्किंग कैपिटल, आई विल टेक दैट अगेन ड्यूरिंग Q&A। मार्केट फेज जो आपको लास्ट सेशन में एक चार्ट दिखाया था कि कौन सा फेज है, यूफोरिया कैसा है मार्केट में, वो समझ के कि मार्केट में आज की तारीख में लोगों मतलब करेक्शन फेज में, बुल फेज में, उस हिसाब से आप डिसाइड करो कि लमसम इन्वेस्टमेंट करना है, SIP करना है, उस हिसाब से। अगर 100 रुपए पड़े सारे के सारे आज की तारीख में डाल देना, वो हमेशा अच्छा चीज नहीं होता है। मार्केट का फेज समझो, उस हिसाब से डालो। कभी कभी सीटिंग, सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत लोग मिस करते हैं कि कैश पर बैठना वो भी एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, कि मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा मार्केट में क्या चल रहा है, तो फिर मार्केट में करेक्शन का चांस है फॉर वॉट एवर रीजन, वो करेक्शन का चांस है, तो कैश पर बैठो तो भी वो अच्छी चीज है। तो you should take this kind of decision as well. Last the important point, I'll take cost of repetition. मेरा इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी है, आपका इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी हमेशा सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है। So you have to see your requirement and then invest. वरना क्या होगा, मतलब बहुत बार हम लोग सुनते हैं मार्केट में कि मेरे फ्रेंड ने बोला था, मेरे किसी ब्रोकर ने बोला था, मैंने किसी जगह सुना था कि ये बहुत अच्छी कंपनी इसलिए इन्वेस्ट कर दिया, और फिर आगे जाके वो पछताने का होता है। बहुत बार हम लोग मार्केट में देखते, मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। फॉर एग्जांपल एशियन पेंट्स की मैं बात करूं, आज ऑफ कोर्स आज रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आया, बट आई विल गिव यू एग्जांपल ऑफ एशियन पेंट्स एज इट्स टॉप ऑफ माय माइंड। रिजल्ट बहुत अच्छा था, आपने लॉन्ग टर्म के लिए डाला क्योंकि बहुत अच्छी कंपनी, उसका आपने पूरा फाइनेंशियल स्टडी किया है, उसका आपका बिजनेस स्टडी किया है, आपको समझ में आता है कि इसमें आपको बहुत 10 साल तक रुक सकते हैं फॉर एग्जांपल। अब मार्केट में जबरदस्त उसका रन अप आ गया, प्राइस में 15% भाग गया, 20% भाग गया, तो क्या होता है, अपने को लगता है 20% भाग गया, बहुत भाग गया, अपने प्रॉफिट बुक करते हैं। तो कभी बहुत बार लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपका शॉर्ट टर्म ट्रेड बन जाता है, वाइस वर्सा भी हो जाता है। आप सोचते हैं हाँ मेरे को मेरे फ्रेंड ने बोला 100 रुपए में कंपनी है, 120 जाएगा तब बेच देना, और 100 रुपए की कंपनी अगर 50 रुपए पे आ जाती है तो बोलते नहीं मैं तो लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहता था, मैं जब वापस 100 के ऊपर आएगा तब मैं बेचूंगा। बहुत बार ये मिस्टेक्स करते हैं इंडिविजुअल्स, मैंने भी किया हुआ है। इट्स सो वी हैव टू पुट एटमोस्ट इंपॉर्टेंस कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म ट्रेड्स ना बन जाए, शॉर्ट टर्म ट्रेड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ना बन जाए, उस हिसाब से आपको इमोशंस कंट्रोल करने हैं। तो ये इंडिविजुअली ये बिहेवियर पर पूरा का पूरा स्लाइड था।
मैथमेटिक्स के ऊपर या तो फिर रैशनल्स के ऊपर नहीं था, ये बिहेवियर साइड पर ज्यादा है। अब मैं बहुत सिंपल बिहेवियर और मैथमेटिक्स का एक एग्जांपल बताता हूँ। हमारे मतलब फंड मैनेजमेंट इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसा बोलते हैं कि घर नहीं खरीदते, कि घर खरीदे तो बहुत सारा पैसा ब्लॉक हो जाता है और वो पैसे से कुछ इतना रिटर्न जनरेट नहीं होता है, रेंटेड घर पे रहो, ऐसा भी कुछ लोग एडवाइस देते हैं। बट दैट इज मैथमेटिकली दैट माइट बी करेक्ट, बट बिहेवियर साइड तो बिहेवियर साइड क्या, आपको घर बहुत जरूरी है, आपको घर खुद के घर पे रहने की जरूरत है, क्योंकि खुद के घर पर रहोगे तो मन की शांति मिलेगा, यू कैन डेकोरेट योर ओन हाउस एज पर योर विश। सोसाइटी में या तो फिर अपने फैमिली के लिए कि इमोशनल रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। सो बिहेवियर साइड, बिहेवियर वाइज यू शुड बाय अ होम, मैथमेटिक्स या लॉजिक वाइज यू शुड नॉट बाय अ होम। सो लास्ट स्लाइड मैंने बताया कि बिहेवियर क्या है वो उस हिसाब से करना चाहिए। मैथमेटिक्स को साइड पर रख सकते, साइड पर लॉजिक को थोड़ी देर साइड पर रख सकते हैं, आपको मन की शांति बहुत जरूरी है। विद दिस एक्चुअली आई वुड लाइक टू एंड द information which I wanted to share. We have 3 questions, of course we'll take that. I'll ask Dr. Harish as well to actually help me with the answers. Actually I'll just take with the last question which was asked earlier. What is negative working capital? मतलब मैं आपको एकदम सिंपल तरीके से बताता हूँ। कोई भी बिजनेस करना है तो अब यूजुअली क्या होता है कि आप पैसे पहले लगाओगे रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, कुछ भी करने के लिए, फिर वो बेचोगे, फिर आपको पैसा मिलेगा, और दैट्स हाउ द साइकिल वर्क्स, कि आपको सप्लायर को पहले देना पड़ता है और आपको अपने कस्टमर से बाद में मिलता है। यूजुअली ये वाला साइकिल ज्यादा चलता है। नेगेटिव वर्किंग कैपिटल में क्या होता है, पहले कस्टमर से पैसा मिलता है, फिर आप सप्लायर को देने वाले होते हो। सो उससे फायदा क्या होता है कि आपको आपका पैसा कम लगाना पड़ता है, कस्टमर के पैसे से धंधा कर पाते हो। So this is a negative working capital in a extremely layman manner. Actually, I don't know your name. If I'm still not able to explain you, I'll explain you separately, or Mr. Harish sir can also help us in this. There are 2 more questions. ROE also. अच्छा, so of course ROE is also important. ROE का सिंपल मतलब है रिटर्न ऑन इक्विटी। अब कंपनी बिजनेस करने के लिए 2 टोटल उनका सोर्स रह सकता है, क्या उनका इक्विटी सोर्स रहेगा, डेट सोर्स रहेगा। तो इक्विटी मतलब या तो मतलब जो भी हमने बताया कि प्रमोटर होल्डिंग में कौन कौन है, शेयर होल्डिंग पैटर्न में कौन कौन, सारे इक्विटी ब्रैकेट में आते हैं। डेट मतलब उनने शायद बैंक से जो उठाया होगा वो। अब बहुत बार बोलते हैं कि उनका इक्विटी के सामने अपने को देखना बहुत जरूरी है कि इक्विटी वाला पैसा ही खुद का लगा, डेट वाला पैसा तो ऐसे भी बाहर से लिया था। तो बहुत लोग बोलते हैं कि आरओई देखना चाहिए, बहुत लोग बोलते हैं आरओसी देखना चाहिए। अब इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल चॉइस, और मेनी टाइम्स इट डिपेंड्स ऑन इंडस्ट्री सेक्टर एज वेल कि आप कौन सा चीज कंसिडरेशन में लेते हो। डॉक्टर विमल, आई होप आई वाज एबल टू एक्सप्लेन। डॉक्टर हिरेन, उनका क्वेश्चन है कि डू आरओसी टेक्स डेट इनटू कंसिडरेशन? Actually, I'll have to get back to Dr. Hiren Vedya. I'm not aware of it. So let me get back to you on that. Dr. Vimal, आपका क्वेश्चन ये है कि आरओसी और आरओई में डिफरेंस क्या है? So I don't have a easy way to actually explain you this. Let me actually find out a simple way to explain you this, and I'll also take this offline. So yes, Dr. Vikram, I'll need your help to connect with Dr. Vimal and Dr. Hiren separately. Yeah, they are there in the WhatsApp group, so you can answer. Great. Yep. Yes. Dr. Biren Shah, I hope you understood what is negative working capital. If somebody is asking about the recording, yeah, recording will be there on the YouTube. Thank you, Dr. Biren Shah. Sanket bhai, it was a fantastic presentation. Very nice. I hope very actually lucid. બહુ વધારે ટેકનિકલ હતું એટલે બહુ બધા બોર ના થઈ ગયા.
No, it was really I- nice, really nice. Very simple. I tried to keep understand. it as simple as possible. Yeah. But I hope I was able to do that. Yeah. Any more questions, or if Harish sir or Shruti wants to say something? So I think we are done for the day. sorry. Yeah, भाई Harish sir. repeat करो ना questions शो था भाई. Sorry, do you want me to repeat the questions? Yes. Yes. So the question actually, which I am not aware of, or I don't know how to explain in a simple manner, is difference between ROE and ROCE. ROC And ROE. ROE is easily manipulated and ROCE is not easily manipulated. This we should remember. समझा? Sorry, actually your voice cracked a lot. I think it was not audible to other participants as well. ROCE, that Yes. is return on capital. આપણે છે, what we consider is the bank debt, whatever company has taken debt. And ROE, we are not considering the debt. That's the difference. Everything else is the same. The debt is the difference, which the company has taken. અને ROCE છે ને એમાં મેન્યુપ્યુલેશન ઓછું થઈ શકે, ઓલામાં મેન્યુપ્યુલેશન વધારે થઈ શકે. Okay. એટલે for us we should remember this only, કે આમાં મેન્યુપ્યુલેશન થઈ શકે છે એટલે બહુ ડિપેન્ડ એની પર નહીં રહેવાનું. ઓલામાં Right. મેન્યુપ્યુલેશન નથી થતું એટલે એની પર ડિપેન્ડ વધારે રહેવાનું. આપણે એટલું જ યાદ રાખવાનું. અને હરેશ સર, what is ROIC? Invested capital નો શું ડિફરન્સ આવે સાહેબ? ઇન્વેસ્ટેડ કેપિટલ Because એટલે in આ US લોકોએ it is very આપણી popular. કંપનીમાં કેટલું ઇન્વેસ્ટ કર્યું છે, કંપનીની Return on- બહાર ઘણી વાર ઇન્વેસ્ટ કરતા હોય ને, આપણી કંપનીમાં કેટલું ઇન્વેસ્ટ કર્યું છે એ લોકોએ. Okay. હા, ઘણી વાર એ લોકોનું બહારનું પણ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ હોય છે ને. તો ખાલી સેલ્ફ કંપનીનું જોવો છે કે બીજી કંપનીઝમાં બી કર્યું છે, એ ખાલી ડિફરન્સ એટલામાં આવી જાય. હા, એ ડિફરન્શિએટ કરવા માટે. બીજું કઈ છે પૂછવાનું? ડોક્ટર હિરેન, ડોક્ટર વિમલ, આઈ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે તમારા આન્સર્સ એડ્રેસ થઈ ગયા છે. સો ગ્રેટ. એનીથિંગ એલ્સ ટુ બી ડિસ્કસ? કઈ બાકી છે હજી? No other pending No questions. other questions, sir. થેન્ક યુ સર. Yep. Thank you, Harish bhai. Thank you, Sanket bhai, Shruti. Thank you very much. Thank you all the participants. I think it was a very great presentation, and the recording will be available. So in some time we will post it on YouTube. Thank you. Thank you very much. Good night. Thank you. Thank you all. Thank you. Thank you.